Ladies and gentlemen, welcome to a very, very special episode of the Fight Mania podcast with me, Mystic Chips, aka Arjun Chabalkati, and my partner Somesh, the superhuman Kamra. And as you can see, we have a very, very special guest in the studio with us, Mr. Pawan Mansingh, two-time My world God, a champion. big round of applause. A big round of Big applause round for of Pawan Bhai. Thank applause. you. Pawan Bhai is in the studio with us. We have a great we have a great show lined up for you. Great conversation, but we have to take a quick commercial break. So we'll be right back in a few seconds. Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Simplify, the gang delves into what happens to your digital legacy after you die. What a fascinating topic. And on The Wire Talk, Siddharth talks to Congress MP Manish Tiwari. They discuss the Agnipath scheme, the past and future of his party, and his new book, 10 Flashpoints 20 Years. On Don Bhai Ka Gappa, Avanti and Aparna discuss how society looks at single parenting, surrogacy, and child adoption. On Misconduct, Raghavi and Nisha discuss the Gulabi Gang, a women's rights organization in North India. And on Cock and Bull, Cyrus, Nivedita Shreyas and Devika Mandrikar talk about Gautam Adani overtaking Bill Gates as the fourth richest person in the world. Once again, I'd like to remind you all that we've got some exciting merchandise out there for you guys. Go to the IVM Podcast website and click on the shop tab and check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. We're also on YouTube. Do remember to check out a bunch of our channels over there. And also remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please tell a friend. Word of mouth is very, very helpful for spreading the word. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. Welcome back. Before Somesh Kamra bhai, so before चालू होने के पहले, there's one thing, okay? So Pawan bhai यहाँ studio पहुंचकर, his phone जी has been locked. He forgot his password. तो पिछले आधे घंटे से वो शक्ल से इतना टेंशन में है और फिर फाइनली अभी याद आया. इसलिए एक्चुअली मैं देख रहा था कि पवन भाई के शक्ल में इतना टेंशन क्यों है। अरे यहाँ पे माहौल इतना अच्छा है। आने के बाद पता नहीं कि पासवर्ड कैसे भूल गया, वो लॉक में आ गया था, भी लॉक हो सारी चीजें होती। Ladies and gentlemen, this is for you to know that elite fighters are extremely good inside the octagon, पर बाहर कभी-कभी मतलब वो बच्चे भी बन जाते हैं यार, ये कि फोन मैं वोन मेरा बंद हो पासवर्ड जाता है भूल वगैरह गया। वगैरह. But नहीं still, होता ladies है. and gentlemen, a big round of applause to Road to UFC Oh my representative of India, Pawan Man Singh. Thank you, Absolutely. sir. I mean, Pawan bhai, it is such such a a fabulous pleasure. performance. But Pawan bhai, आपका performance अभी before we start so much, before we get to the UFC career, our fans don't know. हाँ, लोग जानते नहीं है. देखो पवन मान सिंह इंडिया के पहले फाइटर थे जो 2 टाइटल्स जीत चुके थे. They won correct, both the correct. Super Fight League lightweight and welterweight title, and that's how Which he means started his career. 155 pound and 170 pound. करेक्ट 155 170. पवन भाई आपको आपकी शुरुआत कैसी हुई है एमएमए में? देखो, मैं पहले तो 10 साल मैंने मतलब बॉक्सिंग करते हो गए थे, उसके बाद बॉक्सिंग करते करते फिर ऐसा हुआ 6-8 साल बाद, क्योंकि पॉलिटिक्स चलती रहती है गेम में, तो फिर गवर्नमेंट Correct. जॉब भी लगी थी। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, फिर फिटनेस ट्रेनर बना था। फिर मतलब 3-4 साल हो गए थे जॉब करते हुए। तो मेरा एक दोस्त है, सुपर फाइट लीग स्टार्ट हो चुकी थी 2012 में, 2012-11 में स्टार्ट हुई थी। तो अपने एक जी फ्रेंड को मैंने खेलते हुए देखा था, टीवी में ही फाइट आ रही थी। तो एमएमए कर रहा था वो, तो मैं और मेरा बड़ा भाई है राजेश मान, वो और मैं टीवी देख रहे थे। तो वो कह रहे कि देखिए ये कहाँ पहुंच गया, क्योंकि दोनों एक साथ ही गेम करते थे, कि तू यहाँ पर बैठ के बॉडी वॉडी बना अपना, और तूने लाइफ में कुछ करना तो है नहीं। तो मतलब ऐसे करेक्ट बोला गया उसने। फिर बैठा था, तो मैंने वही अगले दिन से सोचूंगा स्टार्ट करूंगा। तो रनिंग वनिंग सब कुछ छोड़ चुका, मतलब सब कुछ ही छोड़ गया था, सिर्फ हाँ मतलब यही चेस्ट जिम करता था सिर्फ। हाँ जी. तो बाइसेप्स 18 इंच का हो रखा था, 18 इंच का, 18.5 इंच का बड़ा बिग। तो मतलब अभी फ्लेक्स करो फ्लेक्स साइड अभी 18 ओ ओ माय इंडीड ओ मैं इसीलिए मैंने शर्ट लकली उतारना लकली बंद मैं तो किया. दूर बैठा हूँ। नहीं मैंने लकली मैं शर्ट तो दूर उतारना बैठा हूँ। बंद ही किया है मैंने. आई एम नॉट गोइंग टू टेक माय शर्ट ऑफ ओनली. ऐसे ही बैठा हूं मैं साइड में बस. मतलब फिर मैं अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह, मतलब ये टीवी में देख के जो खेलते हुए, फिर मैंने उसी दिन जॉब का डिसाइड कर लिया था कि जॉब नहीं करूंगा, छोड़ दी थी जॉब। फिर पार्क गया ट्रेनिंग करने के लिए,
तो मतलब जब पंच में हिट कर रहा था, पंच लग ही नहीं रहे थे। वो माइक ना 3 बार पंच खा चुका है ऑलरेडी आज। ओके ओके। अरे मस्ती कर रहा हूँ यार। मतलब पंच, मतलब 18 इंच का बाइसेप्स था, तो पंच मतलब वो नहीं होता, हाँ खुलता जी। नहीं है वो, यहाँ तक ही वो हो रहा था, खुल नहीं रहे थे, पेन हो रहा था। फिर खड़े खड़े मैंने यार ये दोबारा कैसे, रोने लग गया था खुद ही कि मतलब करेक्ट। इतना, मतलब एक अच्छा प्लेयर था, 7-8 बार दिल्ली स्टेट में चैंपियन भी बना हूँ, नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ, मतलब और सिलेक्शन हुए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। पर ये अपने देश में पॉलिटिक्स बहुत है, हम्म। क्योंकि एक टीम जर्मनी जानी थी और एक टीम उज्बेकिस्तान जानी थी। फर्स्ट टीम जर्मनी जानी थी, सेकंड टीम उज्बेकिस्तान खेलने जानी थी। सेकंड हाँ मैं जी। ही आया था, तो मैं ही जाना था, तो भेजा नहीं था। ये कौन से साल में था अप्रोक्सीमेटली? ये 2006 या 7 में होगा। अच्छा उससे 7, पहले। ओके हाँ ओके, अच्छा, 7-8 ओके में। ओके। फिर उसके बाद मैंने वुशु गेम भी खेला, फिर मैं दोबारा गवर्नमेंट जॉब लगा। फिर उन्होंने एक मतलब जॉब लगा भी नहीं था, सजा दे दी थी पहले ही। तो मैंने करेक्ट। डिसाइड किया था, मैंने ये जॉब भी नहीं करूंगा मैं। ओहो। फिर अपनी मम्मी से बोला भी कि मैं एक प्लेयर बनना चाहता हूँ, ओलंपिक प्लेयर बनना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब से दूर करवाओ और गेम करना चाहता हूँ। फिर एक गलत डिसीजन उठा लिया था, मतलब डराने के लिए, कोई खुद के मतलब मरने के लिए नहीं, एक डराने के लिए कि मतलब ये गेम करना चाहता हूँ, प्लेयर बनना चाहता हूँ। हाँ जी। पर वो डिसीजन मतलब 20-21 साल का था, इतनी समझ नहीं थी मेरे अंदर कि फिर वो डिसीजन उठाया था। फिर वो गेम ही छूट गया था। उसके बाद ही मैं गवर्नमेंट मतलब जॉब में आया था, प्राइवेट जॉब में, जिम की जॉब लाइन में आया था। पर फिर वही अच्छा। अपने एक दोस्त को एमएमए खेलते हुए देखा। भाई मेरे को तो यही पता था कि रोड लड़ाई है ये, मुझे नहीं पता था एमएमए क्या करेक्ट। होता है, कि इसमें तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि विल पावर, बॉक्सिंग करते हुए बहुत साल हो गए थे, हाँ विल जी। पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो उसको देख के ही मैंने देखा था कि मतलब इस गेम को ही करूँगा मैं, क्योंकि टीवी में आना एक कोई नॉर्मल बात तो होती नहीं है, क्योंकि नहीं। 140 करोड़ में से करेक्ट। आज तक 10 लाख आदमी आए होंगे टीवी में। हम्म। तो मेरे को करेक्ट। भी उसको देख करेक्ट। के वो हो गया था। फिर मैंने बोला था कि इसी को हराऊँगा पहले तो, जिसको देख रहा हूँ, क्योंकि इसी के साथ बॉक्सिंग करता था। इसी एक साथ मेरा अच्छा दोस्त है वो, अभी आज भी अच्छा दोस्त है, पर मैंने इसी को हराऊँगा। फिर एमएमए में फर्स्ट फाइट मेरी श्रीकांत के साथ हुई थी। याद है हाँ। सिर्फ अच्छा, श्रीकांत शेखर। श्रीकांत शेखर के साथ हुई थी। 15 और 20 डेज़ का टाइम, क्योंकि फाइट के लिए मैंने हाँ कर दी थी। हाँ। और आप मानोगे नहीं, हाथ भी सीधे नहीं हो रहे थे मेरे, कि मैंने कैसे खेलूँगा उसमें। मेरे आप देखना उस फाइट में मेरे आई थिंक उनका एक फोटो है हमारे पास, पवन भाई का, वो टाइम का फोटो है, where we have him, जहाँ एकदम बॉडी आपकी हाँ, बॉडी इतनी मेरी हैवी तगड़ी थी। थी। देखा, जस्ट सी दिस सोमेश, हाँ, when you see this photo, ऐसे लगता नहीं है कि ये लाइट वेट फाइटर है। ओके, एक बार इफ आ प्रोड्यूसर कैन बट जस्ट पुट इट ऑन। वो टाइम भी आप लाइट वेट में ही थे वर्सेस श्रीकांत नहीं, शेखर? मैंने जो स्टार्ट किया था वो 84 केजी से, मैं 80, जब तो मैं 89 ये का। देखो, जूम करो उस पे थोड़ा, जस्ट इसके आर्म्स देखो। ओ माय गॉड, ये ये तो मतलब ये तो ये तो प्रॉपर बॉडी बिल्डर की तरह है। प्रॉपर एकदम कितना मसल था मैं वो वाओ। टाइम। ये तो वाओ, मैंने मतलब 84 केजीज। ये मैं वाओ। 20 केजी वेट कम करके आया था 70 में। ये 70 पे था। ये 70 पे था, क्योंकि मैं 90 था मेरा वेट, उसको कट करके मैं यहाँ पर तो आया था। ये बॉडी आपने इतना मसल रखा 70 पे, क्योंकि यानी मेरी फैट कितना कम था इसमें। बॉडी मतलब ज़्यादा थी, तो इसमें भी बाइसेप्स मेरा फिर बहुत हाँ सॉलिड है हाँ, बाइसेप्स यहाँ पे। क्योंकि इसमें भी वाओ। मैंने सारी फैट नहीं था मेरे, बिल्कुल नहीं। मसल्स ही तोड़ी थी मैंने जब भी। हाँ 90 से 70 में आया था। करेक्ट। बट अर्जुन, इट्स सच ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि ये इतनी अच्छी बात है कि नॉर्मली लोग बॉक्सिंग या वुशु करते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, और हाँ जी। पवन भाई ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वो फिर से स्पोर्ट्स में आए। मतलब से टोटली डिफरेंट रूट, उनका रूट टोटली अलग था, विच No, एक्चुअली शोज कि पवन भाई को एक्चुअली अपने स्पोर्ट्स के करियर में कुछ ना कुछ करना था। एंड वो मेहनत की वजह से he is the second fighter in road to UFC, and पवन भाई, we are very proud of you कि जो डिसीजन आपने जिंदगी में लिए करेक्ट। वो हाँ जी। हमारे हिसाब से एकदम सही डिसीजन थे। एंड कोई भी दुनिया में बोले कि आपने गलत किया, ये किया, वो किया, उन पे आप नहीं ध्यान भी मत दो, बिकॉज वी आर वेरी नहीं, प्राउड ऑफ यू। नहीं हाँ नहीं, जी। पहले जो भी उल्टा टेढ़ा, वैसे भी इंटरनेट में एक नंबर के बेवकूफ चुते लोग बैठे हैं। सो आई डोंट इवन हाँ। लिसन टू दिस पीपल नहीं, एनीमोर। उनके बोलने से करेक्ट। बोलने से कुछ कोई फर्क फ़र्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। और मैं सीधा सीधा करेक्ट। बोलता हूँ, हमेशा हमारे शो में बोलते रहता हूँ कि यार, कि जो कोई खुद ब खुद नहीं कुछ नहीं खेला है, इफ यू हैव नॉट इवन ट्रेन स्पार्ड प्रैक्टिस एक बार ना,
करेक्ट बोलने का कोई हक नहीं है किसी को, नंबर मतलब 1। बोलना बहुत आसान होता है, ये जीभ में हड्डी तो होती नहीं है, तो करेक्ट। बोलना बहुत आसान होता है। मतलब ये करेक्ट यूएफसी को खेलने के लिए मेरे को 21 साल लग गए। मतलब वो नहीं दिख रहा कि कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गया। तुम पहुँच जाओ, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आ रहा? 21 years मतलब 21 years 21 मतलब ईयर्स, हाँ, मतलब 10 साल बॉक्सिंग की, 10 साल एमएमए करते होगे, जब जाके वाओ ये। वाओ और वो भी एक वाओ मतलब जब रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, जब मैंने यूएफसी खेला है, हम्म, मतलब मेरे को अपने आप पे जी प्राउड है, मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है कौन सही क्या बात, नहीं, बोलता है। करेक्ट, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं कि भाई यहाँ रिप्रेजेंट करना मतलब इम्पॉसिबल सा काम होता है, सही कि बात। मतलब सेकंड इंडियन करेक्ट हूँ जो रोड टू यूएफसी खेला। और मतलब ये कोई है कि मैंने वहाँ गिव करेक्ट अप कर दिया था, अपन 12.5-13 मिनट में खड़ा रहा वहाँ पर, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो करेक्ट, ऐसा नहीं था बहुत कि वो बड़ी बात स्टार्ट से, इट्स नॉट इवन लाइक सुमेश की स्टार्ट से एंड तक ही वाज आउटक्लास, नहीं, पवन भाई आल्सो मैनेज्ड हिज ओन, बहुत ही हैड इक्वल क्लिंच फाइट था पोजीशंस, he बहुत had इक्वल clinched फाइट था he had clinched positions, he threw some good punches, good combinations, he even he tagged Chekasaragi a few times in that fight, या but the thing is, that या thing is विद ऐसे लेफ्ट होता है, it's a वो fight ना। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्पोर्ट्समैन ही समझ सकता है उसकी वो, कि करेक्ट, मतलब क्योंकि एक तो इसमें ऐसा हुआ था कि भाई मेरे को ये फाइट का 35 डेज़ पहले पता चला था। हाँ जी, उससे पहले क्योंकि मेरे करेक्ट 1.5 साल से कोई फाइट नहीं मिल रही थी। वैसे मैं तीनों मेन इवेंट खेला था एमएफएन में, हम्म, मतलब 1 ड्रॉ करा दिया था, फिर मैं 2 जीता भी। तो उसके बाद मेरे को फाइट नहीं मिल रही थी, तो उसके वजह से मेरे को ऐसा लगने लग करेक्ट गया था चल अब फाइट मैं छोड़ ही देता हूँ। हम्म, पर आप मानो मैं रनिंग-वनिंग करता रहता था अपना एक बॉडी को फिट करने के लिए हाँ रनिंग, जी, पर ये 35 डेज़ ही पहले पता चला था मेरे को यूएफसी का। जैसे ही मेरे को पता करेक्ट चला उस दिन से, वैसे 4-5 किलो वेट मैंने उससे पहले कम करा था। पर जिस दिन मेरे को यूएफसी का पता चला था कि भई मेरे को अब यूएफसी में, पहले मेरे को लगा ऐसे कोई मज़ाक कर रहा है, हम्म, क्योंकि ऐसा मुझे ऐसे ही लगा कि मज़ाक कर क्यों? रहा है, क्योंकि मैं छोड़ चुका था गेम पर, क्योंकि मेरा तो मतलब आपको ऐसे इन लगा कि कब जब फोन आया मजाक था? मुझे ऐसा लगा कि मज़ाक हो रहा है कि मतलब नहीं नहीं गेम पर वेम छोड़। एक्चुअली ना जो जो पवन भाई बोल रहे हैं वो एकदम सही है क्योंकि जब हम लोग डेस्क पे बैठे थे देयर वाज शॉन शेल्बी मिक मेनार्ड एंड हम करेक्ट, लोग इंडियन फाइटर्स के बारे में हम बात कर रहे थे तो बहुत से जन ने बोला कि अरे पवन भाई लेट 30s क्या होगा ये होगा बट करेक्ट, हमारा जॉइंट डिसीजन था कि एज के साथ ना एक्सपीरियंस भी बढ़ता है एज के साथ एक्चुअली बॉडी स्ट्रांग होती है तो देयर कुड बी अ एडेड बेनिफिट कि एक थोड़ा यंगर फाइटर नो लाइक एन अंशुल जुबली एक हाँ, है रोशन माइनाम जो रोशन, who was हाँ, even younger like 23 years and then we want one experienced वाला so करेक्ट, so that was the breakup नहीं, but एक्सपीरियंस के रोशन माइनाम हिसाब का तो से, नहीं हुआ but एक्सपीरियंस के हिसाब से, if you see it, I don't think in Indian MMA we have a more experienced fighter than Pawan, because if you correct see correct if you see all the fighters, I remember Sham Prasad, I remember Babajit, जो पहले पहले वो टाइम पे चालू किया हुँ। था आपके साथ ही. I remember these guys came जी in from kickboxing, from grappling, and I think in terms of success of an Indian MMA fighter in the Indian circuit, I think Pawan Man has been the most successful in that यस sense. यस एब्सोल्युटली क्योंकि अगर हम लोग पवन भाई का रिकॉर्ड देखें द हाँ, रिकॉर्ड हैज ऑलवेज बीन गोइंग अप अभी उनके correct, करियर में थोड़े कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि फाइट नहीं मिलती है तो एक एक साल 1.5 साल बेंच पे बैठना पड़ता है बट पवन भाई का करियर हैज ऑलवेज बीन गोइंग अप सो correct, इसलिए and हमें लगा कि कि पवन भाई इज द राइट चॉइस टू पुट आउट देयर एंड आल्सो रोड टू यूएफसी एनीथिंग टू डू विद द यूएफसी जब भी हमारी बात होती है फर्स्ट थिंग इज क्या वो कोई पेड्स ले रहे हैं कोई सब्सिट्स ले रहे हैं correct. क्या क्या उनका मेडिकल क्लियरेंस 100% है थर्ड पुलिस क्लियरेंस है कि नहीं अभी बहुत सारे सैड सिचुएशन Oh, हुए हैं कि you अच्छे remember? फाइटर्स है बट उनपे ना कोई पुलिस केस है कोई रास्ते में कोई लड़ाई झगड़ा सही बात, हुआ कुछ नहीं हुआ तो उनको वीजा नहीं मिलेगा तो स दैट्स व्हाई हम लोग को सारे एस्पेक्ट्स देख के एक फाइटर सिलेक्ट करना पड़ता है तो इसलिए सही बात है। जब रोड टू यूएफसी के फाइटर्स का फाइनल लिस्ट आया था इंडिया में मुझे जो भर भर के गाली मिली कि अरे इसको क्यों नहीं लिया अरे उसको क्यों नहीं भाई, लिया अरे भाई सोमेश, साहब do you उसका remember? पासपोर्ट ही नहीं है एक जन Do you का remember? मेडिकल क्लियरेंस नहीं है एक जन का करेक्ट। पुलिस केस है आप आप यकीन नहीं करोगे कितने लोगों ने हमको हमारे पीछे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे क्या-क्या नहीं लिखा, क्या-क्या नहीं बोला सोमेश भाई को, और क्या-क्या नहीं बोला। मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स पढ़ोगे, एक-एक फाइटर आके बोल रहा था कि यार किसको ले लिया, क्यों ले लिया, क्या ले लिया? ऐसे ये डिसीजन समझना बहुत बड़ी चीज़ है, और ये डिसीजन तुम्हारे हाथों में नहीं है। जब कोई इंडिया टीम में करेक्ट सिलेक्टर प्लेयर को ले लेता है, वो सब पब्लिक को पूछ के नहीं जाता है। हाँ जी।
नहीं करेक्ट तो करेक्ट तो ये बैकरूम डिस्कशन जो होते हैं ना, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि हमारे साथ पवन भाई बैठे, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो फाइटर्स हैं हमारे, पवन भाई है, अंशुल है, रोशन माइनाम, दे करेक्ट आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। करेक्ट जाट है। इसके बाद, इनके बाद 60 फाइटर्स जाएंगे, 10 फाइटर्स जाएंगे, 15 फाइटर्स जाएंगे, 20 फाइटर्स जाएंगे। तो जो जो बेसिक एग्जैक्टली टॉर्च बेरर्स है, जो तो टॉर्च बेरर्स है, हमारे हिसाब से पवन मान सिंह एब्सोल्यूट राइट चॉइस था। एंड जिसी को भी प्रॉब्लम है, प्लीज रिंग में घुसो, काम करो, एंड अगर सही आपको बात। लगता है कि आप सही चॉइस हो, तो प्लीज आप मैदान में उतरो। नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिकॉज बिकॉज पवन भाई आप देखो, आप ये यूएफसी खत्म होने के बाद आपका चांस, आपने फाइट किया 3 मिनट, सॉरी 3 राउंड फाइट किए, एंड टू डू दैट ऑल्सो वी से ना कि मुश्किल होता है, क्योंकि एक प्रेशर होता है। वो आपको कैसा महसूस हुआ जब एक बार आप पहली बार वो यूएफसी का यूनिफॉर्म पहन के वो अरीना में चले? देखो, ये तो बहुत गर्व की बात है कि मैं वहां तक पहुंचा। सबसे पहली बात तो ये यूएफसी मतलब एक टी शर्ट खरीद के पहनना भी बहुत बड़ी बात होती है, और मैं तो खेल के आया हूँ रिंग में। और अभी जो बंदे ये बोल रहे हैं, जब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यूएफसी में, जो भी जाएगा, हम्म, पहले तो भाई वो एक राउंड ही निकाल देना, वही बड़ी बात है। हम्म, उसके लिए तो मेहनत करो, भगवान करे तुम जीतो। हम्म, जिसे नहीं मेरे बारे में बोलो, जीतो, क्योंकि वो जीतेंगे तो अपने देश का नाम होगा। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे खेल के जाके, क्योंकि और मेरी वजह से ही जो मैं खेला हूँ, हमारी वजह से ही मतलब उनको चांस मिलेगा कि भाई पूरे 3 राउंड तक पहुँच गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। और वो फाइट मैं फिनिश कर सकता था, वो बाई चांस की बात है, वो फिनिश होने वाली थी, नॉकआउट हो जाता कि मैं और थक चुका था, क्योंकि मैंने वेट इतना कम कर लिया था, क्योंकि वो टाइम कम मिला था, क्योंकि जिस जिस दिन ये 35 डेज़ पहले पता था, उस दिन के बाद मैंने साढ़े 16 या 17 किलो उस दिन कम करना स्टार्ट कर दिया। मेन पहले फ़ोकस वेट कम करने पे होता है एक स्पोर्ट्समैन का, कि ये जरूर। जो चीज़ मिली है, इसको कंप्लीट करना है। वो करा, खेला, को भाई 2 प्लेयर खेलेंगे, हारे जीतेंगे। कॉर्नर मैकग्रेगर भी तो पहले 2-3 मिनट में हार गया था। कितने-कितने अभी जो जो अरे मेन भाई फ जोसे आल्डो पहले उसका, इफ यू सी सोमेश, इफ यू लुक एट अ करियर और कितने फाइटर्स थे, कितने जो कितने सुपर एक्सपीरियंस्ड जो एलीट वर्ल्ड का फाइटर्स थे। नंबर 1 इतने सालों से चल रहा था, करेक्ट ओल्डो, वो उसका एक फाइट ने करियर खत्म कर दिया था, जो करेक्ट। वापस 4-5 साल तक वो कमबैक नहीं कर पाया ठीक से। तो मतलब ऐसा बोलना बहुत आसान है। विराट कोहली है, 2.5 साल हो गए, कोई सही परफॉर्मेंस नहीं बात। आ रही, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप लेवल का प्लेयर था, हम्म, 2.5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं। अब उसका ऐसा आ गया कि उसे टीम से निकाल दिया, हर चीज़ निकाला से नहीं अभी तक ना? मतलब निकाल दिया। अभी करेक्ट मतलब वैसे नहीं अच्छा निकाला, ओके। खेलेगा पर 2-3 सीरीज़ के लिए बाहर है, हाँ, उसको छुट्टी लेना चाहिए ऑनेस्टली, छुट्टी। क्योंकि वो ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी-कभी करेक्ट रिमेंबर सोमेश, जब जॉर्ज सेंट पियर जीएसपी, वो हेंड्रिक्स के फाइट के बाद जहां ऑलमोस्ट वो हार गया था, ही टुक अ ब्रेक, करेक्ट 4 साल का ब्रेक लिया उसने, और फिर वापस आके माइकल बिस्पिंग को हराया, वो मिडलवेट टाइटल के लिए जीएसपी। यस। 4 साल करेक्ट का ब्रेक करेक्ट लिया। सो कभी-कभी बट वो, बट दिस, हाँ जी, yeah, sorry, actually there's a little bit नो of a प्रॉब्लम, lag, so that's why नो प्रॉब्लम, नो I'm प्रॉब्लम, hearing you नो a प्रॉब्लम। little later. बट दिस, ये जो पवन भाई ने कहा था इज सो इम्पोर्टेंट, कि हर एक के करियर में ऊंचाई और नीचाई होती है, बट इट इज सो गुड टू सी कि पवन भाई, जो ब्रेक्स थे, पवन भाई kept climbing up and up and up and up. तो करेक्ट। पवन भाई, when it comes to Indian promotions, I'm not saying कि इंडियन promotions अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी है, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। जब एसएफएल आया था, मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। बहुत अभी बढ़िया जब किया। जब एमएफएल चालू है, किया। वो भी बहुत बढ़िया काम किए। नाउ सडनली जब आप यूएफसी गए, इसमें डिफरेंस क्या है, डिस्पैरिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अपने फाइटर्स को ट्रीट करते हैं वर्सेस जो वो ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन है, देखो उसमें ये एग्जैक्टली फर्क एसएफएल क्या है? एंड आप एंड सॉरी, अच्छा, एंड आपका क्या एडवाइस है टू द यंग एमएमए फाइटर, अगर उनको हम्म, यूएफसी तक पहुंचना है, एटलीस्ट वो लेवल तक, मे बी ऑर्गेनाइजेशन में घुसे ना घुसे वो तो बात की बात है, एटलीस्ट वो लेवल तक अगर पहुंचना है, तो यंग फाइटर्स को क्या करना चाहिए इंडिया के? करेक्ट। देखो, यहाँ पर इंडिया में अभी तक कोई ऐसे क्लब चालू नहीं हो जी, जहाँ पर सारी जगह मतलब सारी वर्कआउट एक होता है, क्योंकि बॉक्सिंग भी चाहिए अच्छा, इसमें। इन्हें पूरा एक एमएमए जिम नहीं बना है अभी एक तक। एमएमए जिम कोई ऐसा बना नहीं है जिसमें पूरी सारी चीज़ें हों भई, जहाँ बॉक्सिंग भी होती हो, किक बॉक्सिंग भी होती हो, मुay थाई भी होती हो, हम्म, ग्रैप्लिंग, बीजेजे। एक ऐसा क्लब प्रॉपर बनना चाहिए, जो ऐसी हम्म, ट्रेनिंग अभी एक गोवा में खुला तो है एके, पर
अभी वहाँ पर भी इतनी पूरी वो नहीं है, मतलब फैसिलिटी नहीं है कि जब एक प्लेयर को बनना है पूरा, मतलब एमएमए में घुसना है तो उसे सारी चीज़ें आनी चाहिए। भाई नीचे जाके रेसलिंग कैसे करनी है, अब मैं बॉक्सर हूँ, तो मैं रेसलिंग में वीक हूँ। सही रेसलिंग में बात। वीक हूँ, तो किक्स वीक है मेरी। मतलब मैं किस-किस पे उन जो 35 दिनों में किस-किस चीज़ पे काम करता, हुँ, वैसे विल पावर बहुत हम्म, स्ट्रॉन्ग है मेरी। वो तो उसका तो वो क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ, तो आपका विल पावर हमेशा पहले से ही हाँ जी। कड़क रहा। मतलब एक कहने का मतलब ये पूरा एक वो होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक एमएमए क्लब्स होने चाहिए पूरे इंडिया में। मतलब जहाँ पर हुँ, पूरी ट्रेनिंग अच्छी हो, तो अपने जो है तो यूएफसी में मतलब रिप्रेजेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। और कोचिंग की फैसिलिटी आप बोल रहे हो कि वो लेवल तक फिलहाल नहीं है। वो नहीं है। वो अगर वो होगी तो अपने इंडिया के मतलब एक से एक प्लेयर पड़े हैं जो मतलब यूएफसी में जाएँगे और जीतेंगे और टाइटल्स जीतेंगे, बेल्ट जीतेंगे। जब भी हमारा पूरा हाई लेवल नाम होगा, हमारे रिप्रेजेंट करेंगे सारे प्लेयर। मतलब यही चीज़ें चाहिए। मतलब और यूएफसी में और जो अपने इंडिया में आप पूछ रहे हो कि भई क्या फ़र्क है? एक तो मतलब जो उनकी टाइमिंग और डिसिप्लिन जो होता है, वो प्रॉपर, मतलब जी, एक जो प्लेयर्स होते हैं वो सेम वो रखना चाहिए। उसमें कोई मतलब करेक्ट। जैसे यहाँ पर इंडिया वहाँ से फ़ॉरेनर्स आ गए, तो उनके लिए अच्छे होटल्स दे रहे हैं, इंडियन के लिए काम चलाऊ, मतलब ऐसा कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, करेक्ट। किसी भी प्लेयर के मतलब साथ। डिस्पैरिटी होती है। नहीं होती है, ये हुई है। मतलब एसएफएल में एमएफएन में तो सेम है, एमएफएन में कुछ हुँ। फ़र्क नहीं करते, वो बिल्कुल सेम वो करते हैं। आपको एमएफएन करेक्ट। में जब आपने एमएफएन में शुरुआत की थी आपके हुँ। करियर, अभी कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए एमएफएन को? 3 साल हो गए आई थिंक, हाँ, 20 मतलब में चालू 3-4 हुआ साल था। हो गए, हाँ। ओके, ओके 3 साल हो गए। आपको फ़र्क तो काफ़ी फाइटर्स ने हमसे कहा कि ठीक है, थोड़ा-सा फ़र्क है, थोड़ा-सा ये है, वो है। अ, मैं तो पेमेंट्स-वेमेंट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एंटायर नहीं, वो वैसे सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह। एमएफएन पे अच्छा करता है। अभी हुँ, मतलब $6,000-7,000 पे फाइट पहुँच चुकी है। हुँ, हुँ, मतलब जैसे 4,000 नॉर्मल फाइट, $3,500 वैसे विन का फिर $6,000 हुँ, हुँ। पैसा तो अच्छा देते हैं। ओके, नहीं पैसे वो अच्छा है। तो यार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि एमएफएन जैसे ऑर्गनाइज़ेशंस की शुरुआत जो एक एसएफएल ने शुरुआत की थी, एसबीएल ने शुरुआत की थी, एमएफएन आ रहा है और एक-एक करके छोटे-छोटे मतलब ऑर्गनाइज़ेशंस छोटे नहीं है, बहुत बड़े आएँगे, इससे भी बड़े इससे भी स्टार्ट बड़े होने आ रहे वाले हैं। हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, चल रहा है, जैसे बहुत अभी और भी कॉल आई थी फाइट्स के लिए, पर अभी जैसा पूछा यूएफ बुरा ना मानो कहाँ से आए थे पूछ सकते हैं? मतलब अभी एक कोई शायद बैंगलोर में कोई फाइट्स हो रही हैं, तो हुँ, उसके लिए भी कॉल आई थी, पर पैसा मैंने वही यूएफसी में जितना पैसा मिला था उतना ही लूँगा जब भी करूँगा फाइट। हुँ, सही बात। नहीं अभी तो एक लेवल पहुँच गए हो ना हाँ, तो लेवल पहुँच गया, उसके ऐसे नहीं नीचे है तो किसी से भी फाइट कर लूँगा। एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए मुझे 20 साल लग गए, तो ऐसे नहीं है कि मतलब किसी ने भी रोड पे मेरे को बोल दिया कि भाई मेरे से फाइट्स कर ले, तो मैं ऐसे फाइट करूँगा हम्म, नहीं। Okay, okay, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। and that being said, Mr. Sumesh Kamra and Mr. Pawan Man Singh, we have to go for a quick commercial break. We'll be right back. We are in conversation with the one and only two-time champion and India's only second international UFC fighter, Pawan Man Singh. We'll be right back after a quick break. थैंक यू सो मच। And we are back, Mr. Kamra. आपका वहाँ थोड़ा सा हाउ इज द वेदर मणिपाल में लाइट वाइट नहीं है क्या क्योंकि पूरा शक्ल थोड़ा काला दिख रहा है. वेल एक्चुअली यहाँ पे लाइट वाइट काफी है, बट इनफैक्ट क्वाइट सरप्राइजिंगली आई जस्ट गॉट अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम एंड हाँ लोग पूछ रहे हैं पवन भाई को कि पवन भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। लोगों में विल पावर कैसे लाए, लाइक फाइटर्स में विल पावर और डिसिप्लिन कैसे लाए। ओह! ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है पवन भाई के लिए क्योंकि हम इसी बारे में बात कर रहे थे एक 2-3 प्लेयर दिन बनने के पहले। लिए पहले जैसे अगर एमएमए में आना है तो पहले वो किसी एक गेम का प्लेयर होना चाहिए। हाँ जी। जैसे मैं बॉक्सर करेक्ट, था, कोई रेसलिंग का प्लेयर होना चाहिए। ये नहीं सीधा आ गया और एमएमए स्टार्ट कर दिया, तो उसको कम से कम 5 साल चाहिए। हाँ जी। वो प्रैक्टिस करने के लिए करेक्ट, प्रॉपर जब वो रिंग में उतर सकता है। ये नहीं है अभी जैसे नए-नए बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं कि एमएमए स्टार्ट करेक्ट, अभी किया है, 2 फाइट खेल ली, प्रोफेशनल जब भी मिल जाती है उन्हें, क्योंकि हमारे को पता है ना अमेचर में कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है। जब हम दिल्ली स्टेट खेलने जाते हैं, वहाँ पर फर्स्ट आने के लिए 5 दिन वेट देना होता है हमें डेली, और दिल्ली स्टेट में फर्स्ट आने के लिए 5 फाइट जीतनी होती है, मतलब 1 दिन में 1 ही फाइट होती है। पर हम सुबह 7 बजे जाते हैं और ऐसा हो जाता है हर 9 रोज़ फाइट 5 दिन के लिए। 5, और वो फाइट इतनी मुश्किल होती है कि मट जैसे कॉम्पिटिशन पहले वही ऐसे होते थे, यहाँ पर रिंग अच्छा होता है, पर मट्टी-वट्टी में बैठना है, पेड़ के नीचे पूरा दिन काटना वहाँ पर,
वेट करते रहते हैं क्योंकि फाइट कभी भी हो सकती है। ये नहीं कि करेक्ट। शाम को ही आएगी, दोपहर में भी आ सकती है, 3 बजे भी आ सकती है, 4 उस फाइट का वेट करने के लिए एक आदमी पूरा ज़मीन पे लेट रखा है या दरी-वरी बिछा के रखते हैं, वहाँ पर वेट कर रहा है, कितना थक जाता है वो। वो स्ट्रगल अभी इन्होंने देखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर एमएमए में अभी जैसे प्रोफेशनल फाइट मिल जाती है, एक एक अमेचर ये रिकॉर्ड लिख के भेजते हैं, भाई मेरा हम्म, अमेचर रिकॉर्ड है 5-0 का, 10-0 का, ऐसे तो मैंने 300 फाइट खेल रखी है अमेचर, एमेच्योर 300, वो तो हाँ। 250-300 खेल ली है। मतलब हमने कभी नहीं लिखा कि अमेचर फाइट में भाई अमेचर फाइट लिखनी नहीं चाहिए। हाँ जी, सीधा अपना प्रोफेशनल रिकॉर्ड लिखो, हाँ, क्योंकि करेक्ट। जो डेब्यू कर रहा है वो बता सकता है अपना अमेचर रिकॉर्ड। सही बात। भाई इसने अमेचर खेल रखा है ऐसे, हाँ, तो उसको सही लगता है बताना। मेरे को ये भी बड़ा वो लगता है, भाई इसने 5 अमेचर फाइट खेली है हाँ जी, और 2 प्रोफेशनल खेली, पर जो 2 प्रोफेशनल खेली उसके रिकॉर्ड बताओ ना आप, जो बताना है। क्योंकि ये चीज़ अभी इनको ईज़ी मिल रही है कि हम्म, सीधी सीधा आपने प्रोफेशनल जाने की अभी रास्ता खुल गया है। 7-8 महीने 7-8 महीने में प्रैक्टिस करते हुए एक प्रोफेशनल मतलब लोकल फाइट में जीत भी गए, 1 जीत के 2 जीत हाँ, गए, हाँ। पर ये हवा में उड़ने लग जाते हैं कि हम बहुत तगड़े प्लेयर हैं। करेक्ट। ऐसा करेक्ट। एक अच्छा प्लेयर दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। आई कंप्लीटली एग्री, जो भी करेक्ट। पवन भाई बोल रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि यू नो आफ्टर आफ्टर पवन भाई, आफ्टर आफ्टर अंशुल जुबली, मुझे इतने सारे मैसेजेस मिले कि सर मुझे यूएफसी में खेलना है। एंड मैं बोला कि भाई अपना एटलीस्ट रिकॉर्ड बताओ, कुछ तो बताओ। एंड सब लोग 1 साल के अंदर दे आर ऑल लेस देन 1 ईयर इन ट्रेनिंग इन एमएमए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यूएफसी का लेवल, यूएफसी का लेवल 10 12 15 साल के बाद मिलता है, आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द ग्राइंड। जब आपने सब ऑर्गेनाइजेशंस में आपने सब जन को बीट किया है, तभी एग्जैक्टली। आपको वहां का चांस मिल सकता है। जैसा करेक्ट। यूएफ इवन समवन लाइक कॉनर, लाइक समवन लाइक कॉनर मैकग्रेगर, 2 टाइम्स चैंपियन, केज वॉरियर्स, करेक्ट। केज रेज, कुछ ऐसा। जब उसने पूरा इंग्लैंड आयरलैंड को क्लीन अप किया था, दैट इज व्हेन ही गॉट पिक्ड अप बाय द यूएफसी। करेक्ट। उसके उसके पहले तो ही वाज फाइटिंग लोकल प्रमोशंस। सही बात। जो यूएफसी में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट खेलते हैं, ऐसे भी प्लेयर हैं जो ओलंपिक में गोल्ड रेसलर डैनियल कॉर्मियर, करेक्ट। एग्जैक्टली। मतलब ओलंपिक हेनरी गोल्ड सोरो। मेडलिस्ट, और ये मतलब जिन्होंने आज तक कुछ नहीं खेला, ये सीधा कि मेरे को भी मैसेज आते हैं कि यूएफसी खेलना है। मैंने भाई पहले कोई डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट लिस्ट में मैंने कुछ अरे भाई, खेला है, नहीं खेला है कुछ। अरे सोमेश, देखो सोमेश, तो आप तो जानते हो सोमेश भाई और मैं हाँ जी, हाँ यूएफसी जी। का शो करते हैं हाँ, हर पेपर व्यू कार्ड के लिए। सोमेश भाई शो के बाद टेल पवन भाई कितने मैसेज आते हैं हम हमारे इंस्टाग्राम पे हर बार, बहुत सारे भाई अब मैसेजेस, शो करो, हमको बहुत शो सारे जॉइन में मैसेजेस। आना है, हमको इंटरव्यू करो और वहां से मेरे को हमको यूएफसी भेजो। 21 साल हो गए शो में आने के लिए। मैं आपसे अरे आप यार, अरे ऐसे मत बोलो यार, 21 साल के बाद शो नहीं कर रहे। नहीं, मेरे को तो 21 साल हो गए ना यहाँ पहुँचे, मतलब आने के लिए शो हाँ में जी, आपने हाँ जी, बुलाया मेरे को। हाँ जी। आपको दोनों भाइयों को थैंक यू सो मच। अरे मतलब नहीं, यहाँ पर अरे आने का मेरे को हमेशा मौका थैंक यू दिया। सो मच आपका पवन भाई। अरे शुक्रिया तो हमको कहना चाहिए भाई कि आपने टाइम यू लिया और नो आप आए फाइनली। देखो आप दोनों मतलब यूएफसी का पूरा वो करते हो, तो आप ये हमारे लिए ही कर रहे हो। हमारे लिए ही एब्सोल्युटली, ये आपसे एब्सोल्युटली। नहीं, आप सब आपके कि लिए ही है। मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए जितने भी एमएमए के प्लेयर रेडी हो रहे हैं, वो वो ये नहीं समझ सकते कि ये मतलब ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही हो रही हैं। जो भी आप आ रहे हो ये एमएमए को प्रमोट इंडिया में प्रमोट करने के लिए आप ये काम करते हो हमारे लिए। मतलब इसके लिए थैंक यू सो मच कहूँगा मैं आपको। पवन और भाई थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि आई टेल एग्जैक्टली। यू ये जो है ना, टिपिकली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो आपका थॉट प्रोसेस है, ये जो आपका हम्बल एटीट्यूड है ना, वो हम ओल्ड स्कूल बोलते हैं। जो नए हाँ, बच्चे हैं ना, पुराने वेरी वेरी जमाने का। सैडली, उनको 20 22 साल में ही ना यूएफसी खेलना है, उनको वहां पे रिकॉर्ड मारना है, उनको ये करना है वो करना है, बट उनको ये नहीं पता है कि उसमें कितनी जान जाती है, वो जो भाई काम साहब करने के लिए कितनी जान जाती है, उनको नहीं पता। एग्जैक्टली। अभी जैसे यूएफसी में जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा बेटा बहुत अच्छी बॉक्सिंग करता है। हम्म। तो उसको शौक करेक्ट। हो गया था कि पापा आप जा रहे हो यूएफसी? मैंने देख अभी तक कोई क्योंकि वो अभी कंफर्म नहीं हुआ था कि मैं हाँ खेलूँगा, देख जी, मेरे हाँ को कुछ जी। पता नहीं है, पर हाँ, मैं खेल सकता हूँ। करेक्ट। पर करेक्ट। मैं आपसे मतलब वादा करता हूँ कि मैं उसको इतना तगड़ा तैयार करूँगा कि जितना मैं उसे सिखा सकता हूँ सीखेगा, फिर वो इन फ्यूचर यूएस में भी ट्रेनिंग आपके करेगा। लड़के का नाम क्या है? मेरे लड़के का नाम है वियान मान। वियान मान ऑलरेडी इज ध्यान। ट्रेनिंग सॉलिड बॉक्सिंग। उसके मैंने उसके वीडियोस देखे हैं। एंड सोमेश भाई, आई सॉ हिज इंस्टाग्राम। दिस किड, बच्चे के पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम पे बोल रहा है, जैसे ऑलरेडी बात कर रहा है ना, वो एटीट्यूड है। पर जो हाँ। पवन भाई सिखा रहे हैं, ही इज टीचिंग हिम द हार्ड वर्क नाउ।
कि वो हार्ड वर्क पहले करना है, फिर वो आएगा चांस। मतलब वो कहते हैं कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, फरारी चाहिए, तो मैंने ये इसी चीज से आ सकती है। मैंने एक जो कॉर्नर मैग्रेगर मतलब कहते हैं प्लम्बर था वो, सही। जब वो हजारों हाँ। करोड़ों का मालिक बन सकता है, 2 साल ट्रेनिंग करना, मतलब ट्रेनिंग उसने बहुत टाइम की थी, पर जो एक उसने अपनी वाइफ को बोला गया था कि भाई मुझे 2 साल दे दे लाइफ के, अगर हम्म, इसमें कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम्म, मैं काम करूंगा। फिर हम्म, उसने 2 साल ट्रेनिंग की, पर फिर उसने ये भी बात बोली थी कि मैं इस धरती पे किसी इंसान से तो हार हार नहीं सकता, और उसने वो प्रूफ भी करके दिखाया आज। मतलब उससे मिलने के लिए क्या मिली, हम तो बात कभी इंडिया में अगर आ गए तो मिल पाएंगे। सही बात, मतलब एक correct, उसी को देख के सीखो कि क्या आया था वो और क्या बन गया। सही तो बात। मैं अगर मेरा correct, बेटा आज बोल रहा correct. है फरारी चाहिए, तो उसको कोशिश कर सकते हैं, और क्या पता उसकी किस्मत में लिखा हो। मेहनत करेगा जब ही उस तक पहुँच सकता है, बिना मेहनत के तो पर वो आपका लड़का, वो अपने आप मेहनत करेगा आपके साथ देखो रह रह मेहनत, के। आप वो 10-10 किलोमीटर रनिंग अभी से ही करता है, मतलब फुल ट्रेनिंग, आप कुछ भी एक मुँह से कमांड देने की ज़रूरत है। उनको 2-3 बच्चे ऐसे हैं, एक कमांड देने पे वो 300-300 बर्पी कर देते हैं, तो बर्पी एक ऐसा वर्कआउट है जो मतलब मैं टफेस्ट। जानता हूँ बर्फी, वो 1-2 होता है सुमेश भाई आप 20 करके देखना। फे फेफ मैंने 5 हम किए तो वो दिन, वो सो गया मैं थोड़ी देर के लिए। फेफड़े फेफड़े उड़ जाते हैं उसमें। वो 300-300 आप मानोगे नहीं, अच्छा, ये छो फुल ये मिलिट्री वाला बर्फी है ना, पुशअप पूरा, नीचे पूरा, है, हाँ, पूरा पूरा क्लैप। क्लैप, अरे वो हाँ, क्लैप, वंस ने वो तो 3 बर्फी है तो हाथ ऊपर जाते ही नहीं है क्लैप मतलब आप मारने। मानोगे नहीं, मेरे आगे उसने 200-200, 300-300 कर रखी हैं। अभी मतलब देखो, एक स्ट्रॉन्ग है। Wonderful, नेक्स्ट wonderful. सीजन में मैं तैयार आ रहा हूँ मैं, बस। पवन भाई इज प्लानिंग टू स्पेंड सम टाइम इन मुंबई, तो ये अच्छी चीज है क्योंकि पवन भाई मुंबई आएंगे थोड़ी देर के लिए, मैं तो आऊँगा 3-4 मंथ्स के लिए भी तो मुंबई फिर आ रहा हूँ। गारंटेड हमारा तो फिर ट्रेनिंग तो हो ही जाएगा डन है, ना। डन अरे है। भाई सर, फर्स्ट क्लास, वो तो होना ही यहाँ पड़ेगा क्योंकि पे मतलब और यहाँ पे तो अभी कुछ अलग ही चालू है. अभी भी मैं मतलब पूरी आस नहीं तोड़ी। अभी मैं सितंबर में 39 का हो जाऊँगा, पर अभी भी मैं अपनी पूरी जी-जान लगा दूँगा यूएफसी में खेलने के लिए। क्या पता Wonderful. डैना व्हाइट ने देख लिया हो कुछ, क्या पता? well, क्योंकि किस्मत तो मेरी कि 38 में भी भाई सही कह रहे हो बच्चे कि भाई 25 साल के बच्चे को, उनकी भी बात ठीक है कि 25 साल के बच्चे को लेना चाहिए था। पर जब उनको उस दिन पता चलेगा, जब वो यूएफसी के रिंग में उतरेंगे ना, इतना बड़ा जिगरा चाहिए उसको वो करने के लिए, खेलने के लिए। सही बात। बोलना बहुत आसान होता है भाई, Well, ओलंपिक absolutely. खेल। क्योंकि 2017 में जब हम लोग पहली बार यूएफसी गए थे विद भरत भंडारे, अपना हम्म, जो अपोनेंट था वो था सॉन्ग एडोंग. एंड सॉन्ग एडोंग वो टाइम पे 19 इयर्स का था, 19. हाँ जी। हाँ, एंड जो आग मैंने वो आदमी के आंखों में देखी, मैं एक्चुअली आई वाज लाइक, ओ मैन, ये सॉन्ग एडोंग लिटरली वहां पे किसी को मारने आया था. एंड ही सेड कि आइदर मैं इसको मारूंगा या मैं मरूंगा. एंड वो एटीट्यूड अगर वो चाइनीज बंदा 19 में ला सके, तो हुँ। हमारे इंडियन बंदे क्यों नहीं ला सकते? मुझे वो क्वेश्चन मार्क अभी भी मेरे मन में है. एंड आई नो कि वो क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि उनको लगता है, लाइक जैसा जैसा पवन भाई ने कहा था कि जब मुझे कॉल आया था कि अरे मैं यूएफसी खेल सकता हूँ, तो मुझे लगा कि ये जोक है. बट ये जोक नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ से प्लेयर्स लेके जाऊंगा फॉर श्योर 100%. मुझे बस वो आग दिखनी चाहिए. दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग. करेक्ट। वो आग अभी, आई थिंक, देख सुमेश भाई, वी ऑलवेज स्पीक अबाउट द हंगर, एंगर, द वांटिंग टू बी, और आई थिंक ये स्पोर्ट में ना, जब मोर एंड मोर लोगों को पता लग जाएगा कि एक चांस है, एक करियर बनने का चांस है, हुँ। ऑल दैट विल स्टार्ट। देखो नाउ, यू सी द बॉयज फ्रॉम ब्राजील, दे कम पूरे सीधा स्लम से आते हैं, झोपड़पट्टी से करेक्ट, आके ये लोग लड़ते हैं, ब्राजील के बच्चे लोग। करेक्ट, चाइना में भी बहुत गरीबी है, अंदर अंदर स्टेट्स में, हाँ। और एक एक करके करेक्ट. आई थिंक एक टाइम आएगा। अभी जैसे पवन मान जी का एग्जाम्पल जो था, जो ऑटोमेटिक, हाँ, जो बिगिनिंग से इतना मेहनत करते 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 ही फाइनली रीच द लेवल ऑफ फाइटिंग इन द यूएफसी, जो वो करेक्ट, एग्जाम्पल देख के शायद से वो मोटिवेशन आएगा बाद में, बिकॉज आई सी देयर करेक्ट, आर, करेक्ट, ठीक है, यू आर राइट, एक तरीके से यू आर राइट, यू सेइंग व्हाट यू सेइंग इज राइट, कि हर बंदे में वो जिगर नहीं है, पर वो कोई कोई करेक्ट. एक में, 10 में से एक में वो जिगर एक है। में। एंड इनफैक्ट देखो, सब लोग बोल रहे हैं कि पवन भाई को 21 साल लगे यूएफसी में आने को. नेक्स्ट जनरेशन को 10 साल लगेंगे. करेक्ट, जब पवन भाई के बेटे हो जाएंगे, उनको 5 साल लगेंगे. हाँ, करेक्ट, यस। यू नो तो आई एम सेइंग दैट वैसे ना अपना जो सफर है towards the UFC will become shorter and shorter. And करेक्ट, before we know next 7-8 सालों में, ट्रस्ट मी, इंडिया से कम 10 फाइटर्स तो यूएफसी में खेलते रहेंगे. 100% 100%.
करेक्ट, आई एब्सोल्युटली बिलीव दैट। एंड आल्सो सोमेश, इफ यू सी, ऑटोमेटिकली दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरुआत की है। वन एफसी इज टेकिंग इंडियन करेक्ट फाइटर। आवर ओन रितु फोगत वन एफसी में लड़ रही है, ओलंपिक फाइटर। करेक्ट एंड एक एक करेक्ट करके हमारे गैरी मंगत इज वन देयर, अर्जन सिंह बुल्लर इज द चैंपियन इन वन एफसी। तो ऐसी कोई कमी करेक्ट नहीं है कि इंडियन फाइटर्स में दम ना हो, अभी है। मैंने सुना है ओलंपिक प्लेयर जो बजरंग पुनिया शायद, अभी मेरा हाँ जी, कंफर्म नहीं हूँ मैं, पर वन चैंपियनशिप में ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएगा वो। लो। शायद ओ मैंने सुना है, वाओ अभी मतलब वाओ पूरा कंफर्म नहीं हूँ, अभी मैंने सुना है ऐसा। वो कल ही मेरे को पता चला चर्चा है है आप बोल रहे कि क्योंकि एक नाम फेम जो मिलता है, ये हम्म, एमएमए लोग बाग इसलिए घुस रहे हैं कि उसमें नाम फेम बहुत जल्दी मिलता है, हम्म, तो करेक्ट इसलिए ये करेक्ट एमएमए की तरफ भाग रहे हैं। हम्म, क्योंकि हमारे को स्ट्रगल करने के लिए मतलब पूरी जिंदगी बीत जाती है। हम्म, जब मैं यहाँ तक पहुँचने के, मैं आपको बताया कि किस 20-21 साल लग गए। पर अभी जैसे एमएमए स्टार्ट हुआ है, पर जो भी कोई एमएमए स्टार्ट करना चाहता है, पहले उनको कोई अभी जॉइन कर लेना चाहिए, कोई बॉक्सिंग कर ले, कोई रेसलिंग कर ले। फिर उसके अब वो सीधा डायरेक्ट जाके एमएमए में घुसेगा ना, तो वो फिर कहीं का भी नहीं रहेगा। हम्म, ना तो उसको बॉक्सिंग अच्छी तरह आएगी, ना वो रेसलिंग अच्छी तरह कर सकता। क्योंकि एक प्लेयर को आने के लिए भाई सबसे पहला काम बॉक्सिंग आनी चाहिए, कि स्टैंडिंग में बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग, कि मेरे को स्टैंडिंग में कैसे खेलना है। ये नहीं, क्योंकि करेक्ट यहाँ पर तुम रेसलिंग कर सकते हो ग्राउंड में जाके प्लेयर को, पर अगर आप यूएफसी में करोगे, क्योंकि जैसे वो नीचे जाता है ग्राउंड के लिए, वो जब भी कवर कर लेता है, जब भी खड़ा कर देते हैं। क्योंकि इंडिया में खेल करेक्ट सकते हो तुम नीचे हम्म, बीजेजे और ग्रैपलिंग कर सकते हो, पर वो अब जो यूएफसी में फाइट्स होती है, वो तो सेकंडों के हिसाब से, जैसे टेक डाउन लेने के लिए जाता है प्लेयर, वो तो जब भी खड़े हो जाते हैं, वो लेने ही नहीं देते करेक्ट। उसको। उनकी डिफेंस इतनी हाँ, अच्छी है। मतलब ये नहीं है कि करेक्ट नीचे-नीचे खिलाना है, तुम्हें सब चीज़ आनी चाहिए। तो यानी वेल राउंडेड होना चाहिए एकदम हाँ, सब जब जगह ही से। आप एमएमए खेल सकते हो, नहीं तो ये नहीं है मुँह में भाई कि पवन ने ये खेल लिया, मुझे क्यों ना खिलाया। अभी वेट एंड वॉच, अभी देखते जाओ तुम, पहले तो आओ यहाँ पर, जहाँ तक वो सब कुछ देख रहे हैं यूएफसी वाले, किस प्लेयर को लेंगे, किसको नहीं लेंगे। सही बात। सारा सर्च करके फिर उठाते हैं वो। ऐसे नहीं है किसी को भी करेक्ट प्लेयर को भाई 5-0 का तुमने रिकॉर्ड बना रखा है, तो मैं यूएफसी खेल लूँगा। यूएफसी खेलने के लिए मतलब एक बंदे में वो सब कुछ चेक करके और जिगरा होना चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। पहुँच एग्जैक्टली। जाओगे, पर ये वेरी नहीं, ट्रू तुम बोलना तो बहुत आसान है, वहाँ 30 सेकंड में बाहर आ जाएगा, ऐसे सिस्टम। मतलब खेलने करेक्ट के लिए जा रहे हो रिंग में, 5 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जब तक स्ट्राइकिंग पंच खाने की तुम्हारे में ताकत नहीं है, तो वो गेम नहीं कर सकते तुम। अभी तक तुम जिसका भी रिकॉर्ड है 5-0 का, 6-0 का, तुम अभी ग्राउंड खेल रहे हो गेम, खड़े-खड़े तुम खेलते ही नहीं हो। खड़े-खड़े वो नीचे घुस जाते हैं। फिर किसी ने चोक लगा दिया, रियर नेट की चोक लगा दिया, लोकल फाइट्स करके वो ये कमेंट करते हैं कि हमें यूएफसी खेलना है। भाई यूएफसी खेलने के लिए पहले किसी भी, या तो किक बॉक्सिंग में चले जाओ, बॉक्सिंग में चले जाओ, रेसलिंग में चले जाओ, और सारी चीज़ें करनी चाहिए। 2 दिन रेसलिंग, 2 दिन बॉक्सिंग, सब कुछ वो करना पड़ेगा। और ये एक गरीबी गरीबी प्लेयर ही एमएमए प्लेयर बन पाता है, क्योंकि वो अमीर के पास सब कुछ है। वो कहेगा क्यों पिटाई खाएँ भाई, खून देखते ही तो उनके अंदर गुदगुदी हो जाती है कि ये क्या, कौन-सी फाइट्स करा रहे हैं। क्योंकि वेरी ट्रू कट-वट लगते हैं, वेरी ट्रू एल्बो-वेल्बो लगते सही हैं। बात। को अरे नहीं, वो तो इंजरीज, आप हम काफी लोग जो इंजरीज देख के डर जाते हैं अपने आप अभी ही। मैं मतलब 3-4 दिन पहले एक फाइट देख रहा था, मतलब मैं ही कॉर्नर में था, तो उसने जैसे एल्बो-वेल्बो मारी, अरे मैंने, मेरा बेटा भी करेगा यार ये गेम तो हम्म, मतलब मैं एक प्लेयर के उससे मेरे को भी डर लग रहा था। मतलब अपने लिए डर नहीं लगता, पर हाँ, एक पर मेरा बेटा किसी और करेगा, मैंने साला ऐसे कि कोई इसके एल्बो-वेल्बो मारेगा, मैंने वो एक गुस्सा गुस्सा सा आता है, मैंने साला ये कैसे क्या कर रहा है मैंने। मतलब उसको सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, डिफेंस, जैसे खबीब आज तक कोई मतलब इंजरी नहीं हुई उसके। आपने कोई भी उसकी फाइट देखी, उसके आज वो तक खबीब का सर भी इतना बड़ा है सर भी पहले। बड़ा है, और इतना वो पहला बहुत सर भी बड़ा है खबीब का। पहले जब वो स्टैंडिंग खेलता है तो वो बहुत दूर से खेलता है। वो चोट लगने का चांस ही नहीं देता, क्योंकि गार्ड पूरा प्रॉपर उसका रहता है, और वो गैप मेंटेन करके खेलता है प्लेयर से, क्लोज उलोज। हम्म। और जब नीचे जाता है, तो भाई उसमें पता नहीं भगवान जाने कौन-सी तो जान है, वो कहता है कि जैसे एक पूरे 5 राउंड की टाइटल बेल्ट, मतलब पूरी खेल के 5 राउंड, फिर मेरे को 1 घंटे का रेस्ट दो, मैं फिर खेल लूँगा। क्योंकि वो ट्रेनिंग 8-8 घंटे करते हैं 1 दिन में। जरूर खबीब का एक करेक्ट 4 लाइफ ही घंटे की वैसे है। एक टाइम की ट्रेनिंग है उनकी, फिर खबीब दूसरे की टाइम की 4 लाइफ ही घंटे की ऐसी ट्रेनिंग है। है, वो कैसे थकेंगे? नहीं, वो लाइफ है ना, कबीब की लाइफ में देखो, ना ही वो बाहर जाता है, ना ही उसको पार्टी करना है, ना ही उसको पैसे से कुछ है, ना ही उसको कोई कोई चॉकलेट सिगरेट मुझे दारू कुछ बांटेगा। नहीं उनकी जिंदगी उसको वो सिर्फ भगवान और ट्रेनिंग, ये 2 चीज़ करता है। भगवान उनका जो, हाँ, भगवान, मतलब ट्रेनिंग, यही चलता है ये उनका। उनके लाइफ है, और जब भी वो सक्सेस है, वो जितनी भी उनकी पूरी टीम है, एक 10-15 बंदों की, हाँ, मतलब वो पूरा
यही है वो जो भगवान ना ना वो ही नशा है, ना ही दारू वारू औरत है, कुछ ना कुछ नहीं। कुछ नहीं, वो ऐसी कोई चीज करते नहीं। पर यहाँ पर साले प्लेयर बनते नहीं है, पहले लड़की चाहिए, पहले गर्लफ्रेंड चाहिए उनको, मतलब सारा सिस्टम खराब कर रखा है। वो लड़की जिस दिन वेरी रोएगी ट्रू, तो वो प्रैक्टिस पे नहीं जाएगा। सही बात। ये करेक्ट। ये तो आप लिख के ले लो इस मतलब बात को। फोकस नहीं आप बोल रहे अगर अर्जुन की तरह फोकस होना चाहिए एक उस पे, जैसे अर्जुन था हो। महाभारत का, ये भी अर्जुन अर्जुन अच्छा। मजाक उड़ाओ, उड़ाओ मजाक, उड़ाओ, नहीं उड़ाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अभी बस मैं वो समझ नहीं, ये गया, अर्जुन। सुन के देखो, 6 months into the season, I'm ready, I'm coming. मतलब ये अपने जो यहाँ पे अर्जुन है जो आपके बाजू में बैठे, उनका भी फोकस वही है। तो अर्जुन भाई लड़की, का मेरे पे फोकस था ना, जब भी तो मैं यूएफसी खेला नशा। हूँ। अरे हाँ, पूरी दुनिया का फोकस था। सुमेश भाई का फोकस था, सबका फोकस था। नहीं, पर मेरे जोक्स तो बंद और करो अभी। सुमेश भाई आपसे वादा है, अगर कहीं ना मेरी किस्मत हुई, मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं 1 जी महीने के लिए जी, मुंबई में हूँ काम के लिए। तो मैं जाके वापस इतना तगड़ा कमबैक करूँगा, वही 70, मतलब पूरी जान लगा दूँगा अपनी, चाहे मैं उसमें ना खेलूँ तो एब्सोल्युटली, दूसरी जो कॉम्पिटिशन एब्सोल्युटली। खेलूँगा, जो मैंने कमिटमेंट करी, क्योंकि मेरे को टाइम कम मिला था। वो चलो, एक प्लेयर को पूरे हमेशा ही ट्रेनिंग पे रहना चाहिए। ये नहीं जब कॉम्पिटिशन आया, करेक्ट। जैसे बारिश आ गई, ऐसा मेंढक नहीं हूँ मैं। पर वो एक या मजबूरी थी कि मेरे को बहुत साल से फाइट नहीं मिल रही थी। हाँ जी। तो मैं सोच करेक्ट, रहा था कि छोड़ ही देता हूँ। ये आ गया था कि मैं अब छोड़ रहा हूँ करेक्ट। एमएमए, पर वो किस्मत थी मेरी कि मेरे को यूएफसी का चांस मिला, और उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्योंकि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 20-30 सेकंड का, अगर वो मैं वापस उसको पकड़ता नहीं और अटैक कर देता, वो फाइट वहीं फिनिश हो जाती। चलो कोई बात नहीं, 2 प्लेयर हैं, एक नहीं, हारेगा, एक जीतेगा। हारना जीतना इज पार्ट वेरी ऑफ ट्रू, फाइटिंग, वेरी ट्रू। आई मीन, नहीं, एंड बट दैट इज। एक्चुअली एक्चुअली वहां पे 12-13 मिनट टिकना भी बहुत बड़ी बात बॉस, होती है, बहुत बड़ी बॉस, बात होती है, बॉस, इट्स अ ह्यूज डील। तो 12-13 मिनट इट्स नॉट टिकना। इजी, No, it's not just the इट्स ticking नॉट इजी। aspect. It's not easy at all. I agree completely. And it's that entire experience of being in an international setting is what करेक्ट, makes the difference between Pawan Man Singh and everybody else. And it's the attitude, जो एब्सोल्युटली। attitude रखते हैं, जो हमेशा सीखना है। देखो आपने कैसे बोला, आपको immediately like मैं अभी ट्रेनिंग में वापस जा रहा हूँ, मुझे एक और चांस चाहिए। So, या that is the kind of thing, that is what is required to become a ace fighter. But Somesh bhai, एब्सोल्युटली। that being said, this has been an incredible episode with the one and only Pawan Man Singh, two-time champion and representing India in the UFC. And शायद से एक और बार खेलूँगा, एक खेलो, 100% वादा है एक और आपसे। बार खेलेंगे इतना तगड़ा इंटरनेशनली। कमबैक करूँगा मैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल मेरे को है ना, मतलब नीचे ग्राउंड व्राउंड में जाके हाँ इतना वो जी, नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी थी उस एब्सोल्युटली। दिन, कि सेम पता था मुझे कि ये वाली किक लैंड करेगा, इसके साथ राइट मारना है, पर वो किक इतनी तेज लगी थी कि पूरा दिमाग ने काम सही करना। बात। पहली बार ऐसा हुआ कि करेक्ट। स्ट्राइकिंग में इतना आसान नहीं है कि मेरे साथ कोई खड़े होके खेल ले। हम्म, इंडिया में तो नहीं करेक्ट। है, पर बाहर चलो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। पर उस दिन भी उसको मैंने लगने के बाद भी और रेफरी की गलती थी उसमें, कि उसने मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी पे 2 बार नी मारे थे। वो उसका करेक्ट। पॉइंट डिस्कनेक्ट करना था फर्स्ट राउंड में, जो और सेकंड राउंड में भाई मैंने एल्बो मारी, तो मेरे को वार्निंग देनी चाहिए थी, हम्म। क्योंकि मेरा करेक्ट। फर्स्ट राउंड में हार गया था। आई थिंक हाँ, वो सेकंड राउंड में कड़क जब रेफरी था वो एकदम। अगर उसको मैंने वो एल्बो मारी है, तो उसको मेरे को वार्निंग देनी थी, ना कि सीधा यस। सीधा कोई उसका कोई कटवट 1 कोई पॉइंट लगा था। क्वेश्चन था ना उसमें। उसने मेरा हम्म, पॉइंट डिडक्ट कर दिया, तो इसकी वजह से मेरा पूरा मोटिवेशन टूट गया। मैंने लास्ट राउंड है, इसमें अपनी, क्यों मैं थक भी चुका था, पर फिर भी मैंने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करी, और उसके 4-5 पंच हिट करे, वो अच्छे लगे उसके। पर थोड़ा-सा सिर्फ 30 सेकंड का और खेल रह गया था, मतलब कि नेक्स्ट मैं टाइम उसके भाई, हिट कर नेक्स्ट सकता टाइम, था। नेक्स्ट कोई टाइम, दिक्कत नेक्स्ट नहीं टाइम। है नो इतना, वरीज, नो और वरीज। मैं खुश इट हूँ कि इज मैं इट इज यूएफसी ऑलवेज खेल अबाउट लिया। एक्सपीरियंस। सही जो बात, जो आपको experience। एक्सपीरियंस वहां पे मिला, दैट हाँ इज जी। अनमैच्ड। ये बहुत कम जनों को एक्चुअली वो एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। एंड पवन भाई, वी आर सो हैप्पी कि आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, द सेकंड इंडियन टू एवर वॉक इनटू दैट ऑक्टेगन। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सो थैंक मच। यू 21 सो years मच। इन थैंक यू सर्विस। सर। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक और चांस मिले, because जरूर। I think you are the right candidate for India on the stage to the UFC. So Pawan bhai, thank you so much for थैंक giving यू your सो मच time. भाई। Arjun, thank you so much, and थैंक यू we hope ब्रदर। to see you थैंक in यू the अर्जुन भाई, octagon थैंक यू very सो मच soon. भाई, थैंक यू सो मच। Thank you, bhai. Thank you, bhai. We'll see each other soon. You've been listening to Fight Mania podcast. We'll catch you next week at 7:30 p.m. where Mr. Kamara will be back in Mumbai. Lots to discuss. UFC 277, the return of Amanda Nunez is happening, and that I Yeah. cannot wait for. So we'll see you soon. This has been
the Fight Mania podcast is Mystic Chips, Sumesh, the Superhuman Kamra, and the one and only Pavan Bhai Pavan Man Thank you, Singh. Arjun bhai. Thank you so Thank you, much. Sumesh See you bhai. next Thank you. week.